Hello everyone. So in biology we had started the chapter control and coordination, and our today's topic is coordination in animals. So as you all know, what is coordination? Coordination is simply working of different type of organs to perform a particular function. So here we will see how coordination occur in different type of animals. तो सबसे पहले हम यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की बात कर लेते हैं. Unicellular organisms, as you know, they are those organisms whose body is made up of single cell only. So here I had given you the diagram of amoeba. So I will be talking here about amoeba particularly. So unicellular organisms respond to environmental stimuli by moving towards or away from the source of stimulus. So unicellular organisms, they also respond to the stimulus that is provided by their environment to them. So how they show response is either they move towards the stimulus or they move away from the stimulus. Okay, so this is the way how they show response to a particular stimulus. So such responses of unicellular organisms, as I'm talking here about amoeba, they are termed as taxis. So this moving towards the stimulus or moving away from the stimulus by the unicellular organism, this type of responses are called as taxis, and singular is taxis. So what happened if they move towards the source of stimulus? So if these unicellular organisms are moving towards the source of stimulus, then that type of response is termed as positive taxis. तो ऐसी response को हम लोग बोलते हैं positive, क्योंकि वो stimulus के source की तरफ जा रहा है, ठीक है. And if they move अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ स्टिमुलस, तो अगर वो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म स्टिमुलस से थोड़ा हटके जा रहा है, उससे थोड़ा दूर जा रहा है, देन दैट टाइप ऑफ रिस्पॉन्स इज टर्म्ड एज नेगेटिव टेक्सिस. तो ऐसे रिस्पॉन्स को हम लोग नेगेटिव टेक्सिस के नाम से जानते हैं. सो हियर three terms I had given you. One is taxis, another is positive taxis, and then negative taxis. So what is taxis? Taxis is response that unicellular organism show towards the stimulus. That response is called as taxis. Now taxis is of two types, positive taxis and negative taxis. So if the unicellular organism, for example say amoeba, is moving towards the source of stimulus, then that type of taxis or response is known as positive taxis. And if that unicellular organism is moving away from the source of stimulus, then that type of response is known as negative taxis. So that was about unicellular organisms. उसके बाद अगर हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे, तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में पहले हम बात करेंगे लोअर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की. तो लोअर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस है, ये नर्वस सिस्टम परफॉर्म करता है. But talking about higher multicellular organisms, as in case of we people, so this control and coordination is particularly not as simple as it is in lower multicellular organism and unicellular organisms. तो हमारी बॉडी की बात करें तो दिस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज समहाउ कॉम्प्लेक्स. तो जान लेते हैं हाउ. So in higher multicellular organism, this control and coordination is performed by two control systems or two systems coordination है यहाँ पर higher multicellular organisms की body में. So what are that two type of control system? That is endocrine or ductless system, and second is nervous system. तो दो तरह का control system हमारी बॉडी में परफॉर्म होता है. दो तरह से हमारी बॉडी जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करती है, एंडोक्राइन या डक्टलेस सिस्टम के थ्रू, एंड सेकंड इज नर्वस सिस्टम के थ्रू. अब जान लेते हैं व्हाट इज एंडोक्राइन और डक्टलेस सिस्टम एंड व्हाट इज नर्वस सिस्टम. ओके, talking about endocrine system, so endocrine system is it mostly comprises of some specialized glands. Endocrine system comprised of some specialized glands, and those glands are called as endocrine glands. तो endocrine system बना हुआ होता है कुछ specialized glands का, और उन glands को हम बोलते हैं endocrine glands. ठीक है.
So endocrine system secrete hormones that coordinate slower but longer acting responses. Endocrine system ये जो endocrine system है ये कुछ glands का बना हुआ है. That glands are called as endocrine glands. So these endocrine glands that bring about the control by secreting some chemical messengers. तो ये endocrine glands क्या करते हैं, कुछ ये कैसे control करते हैं हमारी बॉडी को, ये कुछ केमिकल मैसेंजर्स को स्क्रीट करते हैं एंड दैट केमिकल मैसेंजर्स आर नोन एज हार्मोन्स. ठीक है, नो डाउट वो जो हार्मोन्स है वो हमारी बॉडी में स्लोअरली एक्ट करते हैं, बट उनका जो एरिया ऑफ एक्शन होता है दैट इज़ डिफ्यूज. तो वाइड स्प्रेड एरिया होता है उनकी एक्शन का, काफ़ी वाइडली वो हमारी बॉडी को अंडर कंट्रोल कर सकते हैं. So that was about endocrine system. Now talking about nervous system. Nervous system is made up of some specialized cells. As I told you, endocrine system is made up of some specialized glands. That glands are called as endocrine glands. तो यहाँ पर nervous system की बात करें तो nervous system is made up of some specialized cells. Those cells are called as neurons और नर्व सेल्स. तो उसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ने ही वाले हैं. सो दीज न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स आर सम स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट इज़ कंप्राइज जो जिनको मिला के नर्वस सिस्टम बना हुआ होता है. सो हाउ दीज न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स दे ब्रिंग अबाउट कंट्रोल, दे ब्रिंग अबाउट कंट्रोल बाय सेंडिंग सम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. तो ये जो नर्व सेल्स हैं या न्यूरॉन्स हैं ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेज देते हैं और उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को बोलते हैं नर्व इम्पल्स. सो nervous system is made up of some specialized cells. Those cells are called as neurons or nerve cells. How they bring about control and coordination in the body by sending some electrical signals in the form of nerve impulse. तो जैसा कि आपको बताया एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो स्लोअरली एक्ट करता है, बट यहाँ पर नर्वस सिस्टम जो है वो बहुत फास्ट एक्ट करता है. और आपको बताया कि एंडोक्राइन सिस्टम में उसका जो एरिया ऑफ एक्शन होता है वो डिफ्यूज होता है, दैट मीन्स वाइड स्प्रेड होता है. बट हियर नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि इसका जो एरिया ऑफ एक्शन है इट इज़ लोकलाइज्ड ओनली. दैट मीन्स ये कुछ पर्टिकुलर, इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर प्लेस. तो रेस्ट्रिक्टेड रहता है, एंडोक्राइन सिस्टम की तरह डिफ्यूज नहीं होता. बट नर्वस सिस्टम का जो एरिया ऑफ एक्शन है दैट रिमेन रेस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर प्लेस. ओके, so that's something about एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम. आई होप थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया मिल गया होगा कि हम लोगों ने चैप्टर के आगे नर्वस सिस्टम को डिटेल में पढ़ना है, तो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट. और फिर हमने एंडोक्राइन सिस्टम को भी डिटेल में पढ़ना है. तो यहाँ पर थोड़ा आइडिया देने के लिए मैंने आपको थोड़ा सा डेफिनेशंस और ये बताया, यहाँ पर इनको थोड़ा सा मैंने हाईलाइट किया. ओके, so next is coordination in animals. As I had already told you that in higher animals or in higher multicellular animals this control and coordination is done by nervous system and endocrine system. अभी आपको बता दिया. Now this nervous system is comprised of brain, spinal cord and nerves. तो nervous system किस किस को मिला के बना होता है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और कुछ नर्व्स को मिला के बना होता है. तो अब इस नर्वस सिस्टम को डिटेल में पढ़ने से पहले देयर आर सम ऑफ द टर्म्स जो मैं चाहती हूँ आप एक बार अच्छे से समझ ले. ठीक है, तो कौन कौन सी टर्म्स आपको अच्छे से जान लेने की ज़रूरत है यहाँ पर. सो द टर्म्स आर रिसेप्टर्स जो हम डिटेल में पढ़ेंगे और इसके टाइप्स भी हैं यहाँ पे. इफेक्टर्स, देन वी हैव सेंसरी नर्व्स एंड देन वी हैव मोटर नर्व्स. तो ये चार कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनको नर्वस सिस्टम को डिटेल में पढ़ने से पहले आपके लिए जान लेना या समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो व्हाट आर रिसेप्टर्स नाउ? These are the sense organs. Okay, receptors are the sense organs. जब भी आपको कोई पूछता है what are receptors, तो receptors में आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए कि receptors में हम लोग अपने सेंस ऑर्गन की बात कर रहे हैं. तो आपको पता है हमारी बॉडी में कौन कौन सी सेंस ऑर्गन्स हैं. ठीक है, अब क्या है रिसेप्टर? दीज आर द सेंस ऑर्गन्स विच रिसीव द स्टिमुलस एंड पास द मैसेज टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड
थ्रू द सेंसरी नर्व्स। रिसेप्टर्स वो ऑर्गन्स हैं, वो सेंस ऑर्गन्स हैं जो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। जब भी हमें कोई स्टिमुलस मिलता है तो हमारी बॉडी में स्टिमुलस को रिसीव कौन करता है? स्टिमुलस को रिसीव करते हैं रिसेप्टर्स, जो कि हमारे सेंस ऑर्गन है। फिर ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं? फिर ये रिसेप्टर्स एक मैसेज भेज देते हैं हमारे ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को। कैसे भेज देते हैं? किसके थ्रू भेज देते हैं? थ्रू सेंसरी नर्व्स। सेंसरी नर्व्स होती हैं जो रिसेप्टर्स का मैसेज जो है वो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाती हैं। तो आई होप रिसेप्टर्स आपको समझ में आ गया होगा। अब रिसेप्टर्स के कुछ टाइप्स हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। सो व्हाट आर दे? फोटोरिसेप्टर्स, phonoreceptors, olfactory receptors, gustatory receptors, and tangoreceptors. So these are the 5 type of receptors. तो एक एक करके हम जान लेते हैं what are these terms about. Now photoreceptors. फोटोरिसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स हैं जो हमारी आइज में प्रेजेंट होते हैं और उनका फंक्शन है दैट they are able to detect light. So photoreceptors are actually the receptors that are present in our eyes, and what's their function? They detect light. Then we have phonoreceptors. So phonoreceptors are the receptors that are present in our ears, and what's their function? They help to detect sound. Then we have olfactory receptors. Olfactory receptors are the receptors that are present in our nose, and what's their function? Their function is to detect smell. Then we have gustatory receptors. These are the receptors that are present in our tongue, and what's their function? Their function is to detect taste. Tangoreceptors. Tangoreceptors are the receptors that are present in the skin, and what's their function? Their function is to detect touch. So आपको पता है हमारे सेंस ऑर्गन्स आईज, ईयर, नोज, then we have smell, and then we eyes, ear, nose, uh, then we have this tongue and skin. These are 5 sense organs that are present in our body. These sense organs are receptors, and there are some receptors that are present in these sense organs. तो मैंने बोल दिया आपको photoreceptors are present in the eyes and they are used to detect light. Phonoreceptors, they are present in the ears, they are used to detect sound. Olfactory receptors are present in the nose, help to detect smell. Gustatory receptors are present in tongue, they help to detect taste, and finally tangoreceptors in the skin to detect touch. I hope receptors और उसके types आपको समझ में आ गए हैं. Now what are effectors? Effectors are muscles and gland. As you know that receptors are sense organs. तो effectors हमारे मसल्स और ग्लैंड्स होते हैं. अब ये क्या करते हैं? विच रिस्पॉन्ड टू द इंफॉर्मेशन. जैसे ही हमें स्टिमुलस मिला, ओके, तो हमारे रिसेप्टर्स ने उस स्टिमुलस को रिसीव किया, फिर उन्होंने वाया सेंसरी नर्व वो मैसेज जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचा दिया. अब हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमारी बॉडी को कुछ एक्ट करने के लिए बोलेगा. तो effectors are the muscles and glands which respond to the information from the brain and spinal cord through the motor nerves. अब हमारा ब्रेन क्या करेगा? वो वापस मैसेज भेजेगा. किसके थ्रू मैसेज भेज रहा है? मोटर नर्व्स के थ्रू. किसको मैसेज भेज रहे हैं? हमारे ग्लैंड्स और मसल्स को. फिर हमारे ग्लैंड्स और मसल्स क्या करते हैं? वो अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लिया, ओके. तो जैसे हम लोगों ने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया है तो हमारा रिसेप्टर कौन है? स्किन. कौन से रिसेप्टर्स हैं उसमें? उसमें प्रेजेंट है टेंजो रिसेप्टर्स. तो टेंजो रिसेप्टर्स ने स्टिमुलस को रिसीव किया. दैट हॉट ऑब्जेक्ट इज स्टिमुलस. our skin or tangoreceptors receive the stimulus, okay. Then via sensory nerves that message goes to brain and spinal cord. Then brain and spinal cord send the message back through motor nerves. मोटर नर्व्स के थ्रू मैसेज आया वापस, और किसको आया?
हमारे मसल्स को, हमारे हैंड को। हमारे हैंड ने रिस्पॉन्ड क्या किया, हमने क्या किया, हमारे हैंड को पीछे हटा लिया। सो दैट इज रिस्पॉन्ड। ओके, आई होप दिस एग्जाम्पल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ दिस रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स। नाउ व्हाट आर सेंसरी नर्व्स and what are motor nerves? So sensory nerves are nerves which carry information from the receptors that are sense organ to the brain and spinal cord. Sensory nerves वो nerves हैं जो इंफॉर्मेशन को रिसेप्टर्स से ले जाती हैं ब्रेन तक। ओके, and what are motor nerves? Motor nerves are nerves which carry information from the brain and spinal cord to the effectors, muscles and glands. और मोटर नर्व्स वो नर्व्स हैं जो इंफॉर्मेशन को ब्रेन से कैरी करके हमारे मसल्स और ग्लैंड्स के पास ले आती हैं, जो कि इफेक्टर्स से। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाती हूँ ये सारा कॉन्सेप्ट जो है इफेक्ट दीज रिसेप्टर्स, इफेक्टर्स, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स का। तो यहाँ पर देखिए, हियर इज अ स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या है? ब्राइट लाइट। कभी हमारी आंखों पे बहुत तेज रोशनी पड़ती है, तो दैट इज स्टिमुलस। सो स्टिमुलस को रिसीव किसने किया? रिसेप्टर ने रिसीव किया। तो रिसेप्टर क्या है? कौन सा सेंस ऑर्गन है? आई। ओके, अब रिसेप्टर ने जैसे ही स्टिमुलस रिसीव किया, दैट इज ब्राइट लाइट, तो उसने क्या किया? एक मैसेज भेज दिया ब्रेन को वाया सेंसरी नर्व्स। ठीक है, जैसे ब्रेन के पास मैसेज किया, तो ब्रेन ने वापस से मैसेज किया वाया मोटर नर्व्स। किसको मैसेज किया? इफेक्टर को। इफेक्टर क्या है यहाँ पर? सर्कुलर मसल्स ऑफ आइरिस ऑफ आई। ये हमारे आइरिस जो होता है हमारी आई के अंदर, उसके अंदर मसल्स होते हैं जिनको सर्कुलर मसल्स बोलते हैं। तो अभी इफेक्टर जो है आइरिस है आई का, उसमें जो मसल्स हैं सर्कुलर मसल्स, उनको मैसेज आया ब्रेन से। कैसे आया? मोटर नर्व से आया। तो क्या रिस्पॉन्स किया फिर हमारे आइरिस ने? उसने प्यूपल को श्रिंक करवा दिया। ओके, स्टिमुलस ब्राइट लाइट है, रिसेप्टर ने रिसीव किया, आई ने मैसेज भेज दिया सेंसरी नर्व्स के थ्रू ब्रेन में, ब्रेन ने वापस से मैसेज भेज दिया मोटर नर्व्स के थ्रू इफेक्टर्स को। जो आइरिस, जो सर्कुलर मसल्स हैं आइरिस ऑफ द आई में, और इफेक्टर ने वहाँ पर क्या रिस्पॉन्स अल्टीमेटली हुआ? उसने प्यूपल जो हमारे आई में होता है उसको श्रिंक करा दिया। आपको समझ में आ रहा है? सो दिस इज द स्टिमुलस एंड हाउ we react to a particular stimulus. This is concept about that. एक और एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की कोशिश करूँगी। यहाँ पर हम लोग स्टिमुलस को कंसीडर करते हैं हीट। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी ये समझा दिया था। तो स्टिमुलस मिला सम हॉट ऑब्जेक्ट। ओके, रिसेप्टर ने रिसीव किया। रिसेप्टर जो है वो है हीट डिटेक्टर्स इन स्किन ऑफ हैंड। जो टेंजो रिसेप्टर्स हैं हमारी स्किन में, उन्होंने रिसीव किया स्टिमुलस को। सो रिसेप्टर्स ने मैसेज भेज दिया स्पाइनल कॉर्ड को वाया सेंसरी नर्व्स। स्पाइनल कॉर्ड ने वापस से मैसेज भेज दिया इफेक्टर्स को वाया मोटर नर्व्स और मोटर न्यूरॉन्स। इफेक्टर क्या है यहाँ पर? मसल ऑफ द आर्म। उसके बाद क्या हुआ? रिस्पॉन्स में हमने अपने हाथ को पीछे खींच लिया। So I hope all this concept regarding coordination in animals, जो कि हम लोगों ने यूनिसेल्यूलर, लोअर मल्टीसेल्यूलर और हायर ऑर्गेनिजम्स में देखा, वो आपको समझ में आया है। उसके बाद हम लोगों ने नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश की। एंड फाइनली वी टॉक अबाउट रिसेप्टर्स, इफेक्टर्स, टाइप ऑफ रिसेप्टर्स, देन सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स। तो आई होप ये सारा कंसेप्ट जो है ये आपको क्लियर हुआ होगा। सो नेक्स्ट डे वी विल बी बैक विद न्यू टॉपिक। सो टिल देन, थैंक्स।